غزہ کا کنٹرول سنبھالنے اور تعمیر نو کے منصوبے پر جلدی نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان سامنے آیا۔ غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کے بیان پر سابق سعودی انٹیلیجنس چیف کا ٹرمپ کو کرارا جواب۔ امریکہ کا اسرائیل کو $7 ارب سے زائد کے ہتھیار فروخت کرنے کا منصوبہ بے نقاب۔ ہزاروں تربیت یافتہ جنگجو اور میزائلوں کا انبار، حزب اللہ کی بقا کا سوال جس کا جواب صرف ایران کے پاس ہے۔ ہمارا موقف اٹل ہے، غزہ سے فلسطینیوں کو جلا وطن کرنا ناممکن۔ مصر نے امریکہ کو آگاہ کر دیا، حزب اللہ کو لبنان کی حکومت میں شامل کرنا ریڈ لائن ہوگی۔ امریکہ کا انتباہ جاری۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل اور میں ہوں ذوق احمد۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ غزہ کا کنٹرول سنبھالنے اور تعمیر نو کے منصوبے پر جلدی نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگلے ہفتے کئی ممالک پر جوابی ٹیرف نافذ کرنے کا اعلان کریں گے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ غزہ کا کنٹرول سنبھالنے اور اس کی تعمیر نو کے امریکی منصوبے پر عمل درآمد کرنے میں کوئی جلدی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے کہا کہ روسی صدر پیوٹن سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، شمالی کوریا سے بھی تعلقات قائم کریں گے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر میں شمالی کوریا کے صدر کیم جان ان کے ساتھ اچھے تعلقات بناتا ہوں تو یہ سب کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ دوسری جانب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے USAID کو بند کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ادارے کے زیادہ تر اہلکاروں کو پہلے ہی نکالنے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ زیادہ تر اہلکاروں کو جبری رخصت پر بھیجا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کے بیان پر سابق سعودی انٹیلیجنس چیف شہزادہ ترکی الفیصل نے امریکی صدر ٹرمپ کو کرارا جواب دے دیا۔ صدر ٹرمپ کے نام خط میں شہزادہ الفیصل نے کہا کہ فلسطینی عوام غیر قانونی تارکین وطن نہیں ہیں کہ انہیں دوسرے علاقوں میں ڈیپورٹ کر دیا جائے۔ سابق سعودی انٹیلیجنس چیف نے کہا کہ اگر فلسطینیوں کو غزہ سے منتقل کرنا ہے تو ان کے آبائی علاقوں میں جانا، حیفا اور دیگر مقامات پر بھیجا جائے جہاں ان کے زیتون کے باغات تھے اور انہیں اسرائیل نے ان علاقوں سے زبردستی بے دخل کر دیا تھا۔ شہزادہ کے مطابق یہ زمینیں فلسطینیوں کی ہیں، وہ گھر جنہیں اسرائیل نے تباہ کیا فلسطینیوں کے ہیں اور وہ انہیں دوبارہ تعمیر کر لیں گے، بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے گزشتہ اسرائیلی حملوں کے بعد اپنے گھر تعمیر کیے تھے۔ انہوں نے اپنے خط میں مزید کہا کہ غزہ کے زیادہ تر لوگ پناہ گزین ہیں جنہیں 1948 اور 1967 کی جنگوں کے بعد اسرائیلی فوج نے موجودہ اسرائیل اور مغربی کنارے میں ان کے گھروں سے بے دخل کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ اور دیگر مقامات سے فلسطین آنے والے ہزاروں تارکین وطن میں سے بہت سو نے فلسطینیوں کے مکانات اور زمینوں پر قبضہ کیا، وہاں کے باشندوں کو ڈرایا، دھمکایا اور ان کی نسلی تطہیر کی کوشش کی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دوسری جنگ عظیم کے فاتحین امریکہ اور برطانیہ نے فلسطینیوں کے ان کے گھروں اور زمینوں سے بے دخلی میں مدد فراہم کی۔ شہزادے کے مطابق ٹرمپ سے کہا گیا کہ اگر وہ خطے میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں تو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق فلسطینیوں کو ان کا حق خود ارادیت اور ریاست دی جائے۔ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اسرائیل کو $7 ارب سے زائد کے ہتھیار فروخت کرنے کے اپنے منصوبے سے کانگریس کو باقاعدہ طور پر آگاہ کر دیا ہے۔ امریکی خبررساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق یہ پیش رفت وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ملاقات کے 2 دن بعد جمعے کو سامنے آئی ہے۔ امریکہ کی جانب سے متوقع طور پر اسرائیل کو ہزاروں بم اور میزائل فراہم کیے جائیں گے۔ ان ہتھیاروں کی فراہمی کا یہ منصوبہ ایسے وقت میں سامنے لایا گیا جب ابھی اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ کافی نازک مرحلے میں ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ کو فلسطینیوں سے خالی کروانے اور تعمیر نو کے بعد اسے سیاحتی مقام بنانے کی تجویز پر بھی بڑے پیمانے پر تنقید ہو رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوری میں اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد اسرائیل کو 2000 پاؤنڈ والے بموں کی ترسیل کی اجازت دے دی تھی۔ ان بموں کی ترسیل پر جو بائیڈن انتظامیہ نے اس خدشے کے تحت روک لگا رکھی تھی کہ ان سے سیولینز کی ہلاکتیں ہو سکتی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے ان بموں کی ترسیل کی اجازت دے دی ہے کیونکہ اسرائیل وہ خرید رکھے ہیں۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق جمعے کو کانگریس کو ہتھیاروں کے 2 الگ الگ کھیپوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا جن میں سے ایک $6.75 ارب کی ہے۔ ان میں گولہ بارود، گائیڈرز، کٹس اور دیگر متعلقہ سامان کے ساتھ ساتھ چھوٹے قطر کے 166 بم، 5 پاؤنڈ وزن کے 2800 بم وغیرہ شامل ہیں۔ ان ہتھیاروں کی فراہمی رواں برس شروع ہو جائے گی۔ اسرائیل کے لیے امریکی ہتھیاروں کی دوسری کھیپ میں
3000 हेलफायर मिसाइल और इनसे मुतल्लिक सामान शामिल है। इन हथियारों की मालियत $660 मिलियन है और इनकी तरसील का आगाज 2028 में मुतवक्के है। नाज़रीन, 26 जनवरी के दिन हजारों बेघर लबनानी शहरियों ने जुनूबी लबनान में वाक़ अपने घरों को वापस लौटने की कोशिश की। इनकलाबी मौसीकी सुनते, हिजबुल्लाह का परचम फख्र से लहराते, काफलों में सफर करने वाले इन लोगों को 1 साल की जंग के बाद वापसी पर पता चला कि उनके घर रहे ही नहीं थे। उन्होंने अपने नुकसान पर तासुफ का इजहार किया और तबाशुदा इमारात में हिजबुल्लाह के साबिक सरबरा हसन नसरुल्लाह की तस्वीर आवेजा कर दी। उस दिन इस्राएली फौजियों के इनखला मुकम्मल होना था, जो अमेरिका और फ्रांस की सालसी में तय पाने वाली जंगबंदी की शर्त थी। इस शर्त के तहत हिजबुल्लाह को जुनूबी इलाकों से हथियार और जंगजू भी हटाना थे, जबकि हजारों लबनानी फौजियों की जुनूब में तैनाती होना थी। ताहम इसराइल का कहना है कि लबनान ने मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं किया और इसका नतीजा यह निकला कि इसराइली फौज का इनखला भी मुकम्मल नहीं हुआ। लबनान ने भी इसराइल पर कुछ ऐसे ही इल्जामात लगाए हैं और जैसा कि मुतवक्के था, हालात बिगड़े। चंद इलाकों में इसराइली फौजियों ने गोलियां चला दी और एक लबनानी फौजी समेत 24 अफराद अपनी जान से गए। ताहम जनूबी लबनान में दहाइयों से सबसे बड़ी ताकत हिजबुल्लाह को एक बार फिर अपनी ताकत के इजहार का मौका मिल गया, जिसे इसराइल से जंग में बहुत नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या हिजबुल्लाह बतौर गरोह लबनान और मशरक़ वुस्ता में वकूअ पज़ीर होने वाली तब्दीलियों से बचकर जिंदा रह सकेगी? और इसका जवाब हिजबुल्लाह ने खुद ही दिया, अपनी मुज़ाहमत से और अपनी कार्रवाइयों से, अपने जज्बे से और अपनी शहादतों से। गुज़िश्ता दहाइयों में हिजबुल्लाह ने एक अस्करी, सियासी और माशरती तहरीक के तौर पर लबनान के सबसे ताकतवर गिरोह की हैसियत इख्तियार कर ली, जिसने ईरानी हिमायत और मदद से लबनानी फौज से भी ज्यादा अस्करी ताकत और महारत हासिल कर ली। जबकि इस तमाम तर सूरत हाल में उनकी जानिब से जद्दोजहद एक अहम रास्ता है। दूसरी जानिब पार्लियामान में मौजूदगी की वजह से हिजबुल्लाह के बगैर कोई अहम मुल्की फैसला मुमकिन नहीं होता था। मुख्तसर तौर पर यह कहा जा सकता है कि हिजबुल्लाह किसी भी वक्त मुल्क में अपना एक अहम किरदार अदा कर सकती है और यह सलाहियत रखती है, और कभी भी उसने ये किया भी है बहुत से मौक़ों पर। ताज़ा तरीन तनाज़ा अक्टूबर 2023 में उस वक्त शुरू हुआ जब हिजबुल्लाह ने गजा में इसराइली जंग के जवाब में एक अहम महाज खोल दिया और अपने लोगों की हिफाजत की, अपने लोगों की आवाज बने। गुज़िश्ता सितंबर में कशीदगी उस वक्त बढ़ी जब इसराइल ने नाकाबिले यकीन हद तक हिजबुल्लाह के अंदर घुसकर पहले पेजर धमाकों में गिरोह के अरकान की शहादत की मंसूबाबंदी को अमली जामा पहनाया और उसके बाद वॉकी टॉकीज भी इसी तरह इस्तेमाल हुई। दूसरी जानिब फजाई हमलों और जुनूबी लबनान पर जमीनी हमले में आम शहरियों समेत 4000 से ज्यादा अफराद को शहीद किया गया और खुसूसी तौर पर हिजबुल्लाह की हिमायत करने वाले इलाकों में बहुत जानी और माली नुकसान के अलावा हिजबुल्लाह को भी भारी चोट पहुंची। उनको एक नुकसान हुआ लेकिन उससे उनके हौसले पस्त नहीं हुए। बहुत से रहनुमा शहीद हुए। हसन नसरुल्लाह समेत जो 3 दहाइयों से हिजबुल्लाह का चेहरा थे, उनके जानशीन नईम कासिम जो हसन नसरुल्लाह जितने बाइख्तियार थे, उन्होंने तस्लीम किया कि उनको तकलीफदेह नुकसानात पहुंचे हैं लेकिन उनके हौसले पस्त नहीं हुए। वो इन नुकसानात की भरपाई अपने हौसलों से करते रहे हैं। नवंबर में जंगबंदी का ऐलान एक तरह से हिजबुल्लाह की जानिब से हथियार फेंकने के बराबर था, जिसे अमेरिका, बरतानिया समेत बहुत से ममालिक में दहशतगर्द गिरोह समझा जाता था और ये वो तमाम ममालिक थे जो अमन के दाई थे। इन्होंने इनको दहशतगर्द समझा, लेकिन ये वो थे जो अपनी खुदमुख्तारी की जंग लड़ रहे थे और जिन्होंने ये सोचा कि ये हथियार डाल रहे हैं, इनको नुकसान हुआ है। उनको लगता था इनकी आंखों में खौफ आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका जो जज्बा शहादत और अपने मुल्क के लिए और अपने लोगों के लिए जो जज्बा था, उसने अपने से कई गुना बड़ी फौज, कई गुना बड़े इत्तेहादियों को नीस्तो नाबूद कर दिया। गुज़िश्ता माह नई हकीकत का इदराक उस वक्त हुआ जब लबनान की पार्लियामेंट ने साबिक आर्मी चीफ जोसेफ ऑन को नया सदर मुंतखब कर लिया, जिनकी हिमायत अमेरिका में भी पाई जाती है। यह इंतखाब 2 साल तक एक बहरान के बाद हुआ, जिसकी वजह हिजबुल्लाह बताई जाती है। तहम कमजोर हिजबुल्लाह इस बार इस अमल को माजी की तरह रोक नहीं सकी और ये उन लोगों का मानना था जो समझते थे कि चंद माह की कार्रवाई से वो हिजबुल्लाह को कमजोर कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपने इस मशरिक वुस्ता की सूरत हाल में देखा कि सबसे ज्यादा दिलचस्पी इसराइल को जंगबंदी की कहां पर थी, तो इसका जवाब आप खुद देंगे कि वो लबनान पर थी। और उसकी बड़ी वजह क्या थी?
वो हिजबुल्लाह थी। उसकी वजह ये थी कि वो हिजबुल्लाह का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। एक जानिब गजा में हम देख रहे थे कि वहां से मुज़ाहमत हो रही थी, तो दूसरी जानिब लबनान से हो रही थी। ऐसी एक पेशरफ्त नए सदर की जानिब से नवाब सलाम की बतौर वजीर आजम तैनाती थी, जो बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के सदर के तौर पर काम कर रहे थे। उनको हिजबुल्लाह का हामी नहीं समझा जाता था, ऐसा कुछ लोग समझते थे। फिलहाल हिजबुल्लाह की तवज्जो और तरजीह उसकी अपनी बुनियाद है। हिजबुल्लाह ने अपने लोगों को बता रखा है कि जंग में जितनी मर्जी हमें देर लड़ना पड़े, हम हकीकत में इसको फतह हासिल करके ही छोड़ेंगे। हमारा आखिरी बच्चा तक इस जंग में हिस्सा लेगा। और यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ये उनका जज्बा था जो वो खुद जंग के मैदान में आ जाते थे। एक जानिब इसराइल के मनाजिर हम देखते थे, वहां की खबरें आप तक पहुंचाते थे, अब खुद वहां की पार्लियामान के अल्फाज सुनते थे और उनके फौजियों के बयानात सुनते थे, जो कि जंग में हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं थे। इसराइल के अंदर हर मर्द शहरी को किसी ना किसी सतह पर फौज में रहना होता है और एक मखसूस अरसा गुजारना होता है। लेकिन जब उनको गजा और लबनान में भेजा जाता था, मासूमों पर उनसे कत्लेआम करवाया जाता था, नस्ल कुशी की जाती थी, शहादतें करवाई जाती थी, तो उन्होंने इनकार कर दिया, हम नहीं जाएंगे। लेकिन जरा यहां की सूरत हाल देखें, यहां पर लबनान की सूरत हाल देखें, गजा की सूरत हाल देखें, यहां सूरत हाल मुख्तलिफ है। यहां पर एक शहीद होता था तो उसके घर में मौजूद 10 मजीद अफराद अपने आप को शहादत के लिए पेश कर देते थे। वो माएं अपने बच्चों के सरों पर हमेशा कफन बांध कर रखती थी कि एक बेटा शहीद हो गया है तो अगला बेटा तैयार है। एक नस्ल को खत्म करने की कोशिश की, आने वाली नस्लें तैयार हैं अपनी जमीन की, अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करने के लिए। आबादियां तबाह की गई और आलमी बैंक के मुताबिक इमारात को पहुंचने वाले नुकसान का तखमीना $3 अरब से ज्यादा का लगाया गया। तबाहाल मईशत के साथ लबनान में कोई नहीं जानता कि मदद कहां से आएगी, क्योंकि उनको मदद के तमाम रास्ते बंद किए गए, क्योंकि बैनुल-अक़वामी इमदाद को हुकूमत की जानिब से हिजबुल्लाह की ताकत के हवाले से इक़दामात से मशरूत किया गया। हिजबुल्लाह ने 2006 की जंग के बाद की तरह बहुत से लोगों की माली इमदाद की, अस्करी इमदाद की और उन लोगों को एक जज्बा दिया, उन लोगों को एक सोच दी, उन लोगों के साथ मिलकर एक मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए निजाम बनाया, जिसके बाद उन्होंने इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और यह है हिजबुल्लाह की जीत, और यह है इसराइल और उसके इत्तहादियों की हार। इस तमाम तर सूरत हाल में हमें मालूम होता है कि जीत उसी की होती है जो अपने जज्बे के मुताबिक खड़ा रहता है। जबकि एक और अहम मामला इस हवाले से ईरान की जानिब से भी सामने आया है। दारुल हुकूमत में अगर बात की जाए, लेकिन हिजबुल्लाह की अस्करी ताकत का मुस्तकबिल का फैसला शायद लबनान से बहुत दूर ईरान के दारुल हुकूमत में होगा, क्योंकि वो उसका इत्तहादी है, जहां से दहाइयों तक असले और पैसे की मदद से मुज़ाहमत के महवर नामी इलाकाई इत्तेहाद की परवरिश की गई और इसराइल का आतशी घेराव कायम किया गया। ये वेस्ट सोचता है इस तरह कि इस तरह का बहुत सा काम किया गया, और उनकी ये खाम ख्याली भी है कि ईरान कमज़ोर हो गया है। उनकी ये खाम ख्याली भी है कि जो प्रॉक्सीज जो वो कहते हैं ईरान की, कि ये इन पर ये कमज़ोर हुई हैं इस जंग में, इसलिए ईरान का मशरक़ वुस्ता में असर रसूख कम हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये वो लोग हैं जो अगर ईरान उनको किसी किस्म की मदद कर भी रहा है, उसके बावजूद वो अपने हौसलों पर कायम है। अगर किसी के घर पर कब्जा करने की आप कोशिश करेंगे तो उसको किसी की हिमायत या किसी की शय दिलाने की जरूरत नहीं है। वो अपने घर की खुद मुख्तारी के लिए, अपने घर की हिफाजत के लिए खुद आन खड़ा होगा। और आपके साथ आपने किसी मां को अगर देखा हो, वो किसी इंसान की मां हो या जानवर की मां हो, आप देखते हैं कि जब उसके बच्चों पर हमला किया जाता है या उसके बच्चों को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तो वो कैसे सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। यही सूरत हाल हमने देखी लबनान में, हमने देखी गजा में, हमने देखी शाम में, कि किस तरह लोग जो उस जमीन को अपनी मां समझते थे या वो जो अपनी खुद मुख्तारी की जंग लड़ रहे थे, वो सामने आए। उन्होंने दिखाया कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। ये जो कहा जाता है कि एक जिस्म की मानिद हैं तमाम इस्लामी ममालिक, खामोश रहे। इन्होंने कोई सिफारतकारी भी नहीं की, इन्होंने कोई इमदाद भी नहीं की। जो कुछ भेजा जाता था उन लोगों के लिए वो बॉर्डर पर रोक दिया जाता था। वहां पर मौजूद लोगों के पास खैमे नहीं थे, उनके पास दवाइयां नहीं थी, उनके पास वहां पर खाने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन उन लोगों ने ये जंग लड़ी, ये जीती,
آج ان کے گھر تباہ ہو گئے, ان کا وہ شہر ملبے کا ڈھیر بن گیا, لیکن آج ان کے چہروں پر خوشی موجود ہے. آج جنگ بندی ہوتی ہے تو اسرائیل کے اندر شادیانے نہیں بچتے, وہاں پر لوگ نہیں سیلیبریٹ کرتے, اس کو غزہ میں کرتے ہیں, لبنان میں کرتے ہیں, لوگ اس جیت کو خوشی سے مناتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیت کس کی ہوئی. دوسری جانب امریکہ کی مشرق وسطی میں نائب ایلچی مارگن اورٹاس نے کہا ہے کہ امریکہ نے سرخ لکیر کھینچی ہے کہ گزشتہ برس اسرائیل سے شکست کھانے والے مسلح گروہ حزب اللہ کو لبنان کی نئی حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہیے. برطانوی خبررساں ادارے روئٹرز کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور لبنان کے صدر جوزف اون کے منتخب ہونے کے بعد کسی امریکی سینئر عہدیدار کا لبنان کا یہ پہلا دورہ تھا. ان کا یہ دورہ ایسے وقت میں ہوا جب لبنان میں کابینہ کی تشکیل تعطر کا شکار ہے, جہاں حکومتی عہدے فرقے کی بنیاد پر تقسیم کیے جاتے ہیں. حزب اللہ کی اتحادی جماعت عمل نے تمام شیعہ مسلم وزراء کی تعیناتی کا مطالبہ کرتے ہوئے کابینہ کی تشکیل کو تعطل میں رکھا ہوا ہے, جبکہ لبنان کے صدر کے ساتھ ملاقات کے بعد مارگن اور ٹاگس نے میڈیا کو بتایا کہ وہ ایران کے حمایت یافتہ گروہ حزب اللہ سے خوفزدہ نہیں ہیں, کیونکہ وہ فوجی اعتبار سے شکست کھا چکے ہیں, اور یہ وہ خام خیالی ہے جس کی بنیاد پر یہ شکست ان امن کے دائیوں کا مقدر بنی ہے. اس تمام تر مشرق وسطی کی صورتحال کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجئے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.